माधव जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवराधारी। गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवराधारी। जयो यशोदनंदना जयो व्रज जनरंजना। जयो यशोदा जयो यशोदनंदना जयो व्रज जनरंजना। जयो यमुना तिरुवनचारी जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधव राधा माधव राधे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। Hare Krishna. On behalf of ISKCON Delhi, we would like to welcome His Holiness Haldar Swami Maharaj. ठंडा का जरूरत नहीं इसलिए गिर जाता है। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंग्रेजी में बोलना है क्या प्रभु जी? ठीक है, भक्त लोग के लिए जो अच्छा है तो नहीं, अंग्रेजी ठीक है। जो हिंदी है ना, तो हिंदी मेरा अच्छा है ना, तो अंग्रेजी अच्छा है, चलता है, चला देता हूँ। अच्छा ठीक है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला वर्ष 253। पढ़ुआ सहस्र जहाँ पढ़े कठाई, पढ़ुआ सहस्र जहाँ पढ़े कठाई, प्रभुर वृत्तान्त दिज कहे तहाँ जाई, बुरा वृत्तान्त दिज तहाँ जा। Translation: The Brahman student ran to the place where 1,000 of students were studying together. There he described the incident to them. Purport: in this verse we find the word Dija indicating that the student was a Brahman. Actually, in those days, only members of the Brahman classes become students of Vedic literatures. Schooling is meant specially for Brahmans. Previously, there was no question of schooling for Kshatriyas, Vaishyas or Shudras. Kshatriyas used to learn the technology of warfare, and Vaishyas learning the business for their father or for their other businessmen. There were not means to study the Vedas. At present, wherever everyone goes to school and everyone is giving the same type of education, although no one knows what is the result will be. The result, however, is the most unsatisfactory, as we have seen in the Western country especially. The United States has vast educational institutions where everyone is allowed to receive an education, but the result is that the most students become like hippies. Higher education is not meant for everyone. Only selected individuals trained in Brahmanical culture should be allowed to pursue a higher education. Educational institutions should not to aim to teach technology. For a technologist cannot properly be called educated. A technologist is a Sudra. Only one who study the Veda
may properly be called a learned man, Pandit. The duty of a Brahman is to become learned in the Vedic literature and teach the Vedic knowledge to other Brahmans. In our Krishna consciousness movement, we are simply teaching our students to fit Brahmans and Vaishnavas. In our school at Dallas, the students are learning English and Sanskrit. And though those two languages, they are studying all our books, such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita as it is, and the nectar of devotion. It is a mistake to educate every student as technologist. There must be a group of students who became Brahmans. Without Brahman, to study the Vedic literature, human society will be entirely how can we say? Chaotic. My English is not good. Yes. पढ़वा सहस्रजा पढ़े कठाई प्रभुर वृतांत दिज कहे ता जाए. The Brahman student ran to the place where the thousands of students are studying together. There he described the incident to them. First of all, I want to pay my respect. हिंदी में बोलना है, ठीक है. सो पहले मैं मेरा परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की चरण कमलों में मैं प्रणति करता हूँ समर्पित होकर. संस्था की संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में समर्पित होकर प्रणति निवेदन करके, और सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्य लोग की चरण कमल में मेरा प्रणति है, और इस क्षेत्र की उपस्थित सभी वैष्णव भक्त लोग की चरण कमल में मेरा प्रणति है. प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद जी की महती कृपा से हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत से ये प्रसंग आदि लीला. चैतन्य महाप्रभु जी की लीला है. महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो पढ़ाई कर रहे थे, व्याकरण, ब्राह्मण थे महाप्रभु. तो भगवान कौन सा कास्ट में होते हैं? गीता में बोले ना ठाकुर एक श्लोक, चतुर्वर्णमय सृष्टा गुण कर्म विभागस्य तस्यम कर्तारम. मैं 4 वर्ण सृष्टि किया हूं, लेकिन 4 वर्ण और आश्रम में मैं नहीं हूं. जिसे उड़िया लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उड़िया में जो गोयल लोग होते हैं वो बोलते हैं कृष्ण हमारा जाति का है. तो भगवान कोई जाति पति का नहीं है, परमात्मा तो परमात्मा होते हैं. लेकिन भगवान जब पढ़ाई करते हैं ना, ब्राह्मणिकल कल्चर जो होते हैं, प्रभुपाद जी कितना सही स्वरूप से बोले हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर, जिसे कृष्ण कॉन्शसनेस है, वैष्णविज्म में, ये ब्राह्मणिकल कल्चर है. आप कोई जाति पाति के लोग हो, इधर आने से आपको वैष्णव बनना है, विष्णु भक्त बनना है. हमारे जो कैटेगरीज है, ये एक इंस्टीट्यूशन है. जैसे कॉलेज होता है ना, स्कूल होता है कि नहीं, उसका कोई सिस्टम रहता है. प्रभुपाद जी कई बार मैंने पढ़ा हूं, प्रभुपाद जी बार बार बोले हैं, कभी कोई भक्त ये नहीं सोचना चाहिए इसका एक फ्री हॉस्टल है. ये हॉस्टल लाइफ नहीं है, मैं इतना करूंगा इतना नहीं करूंगा, ये मेरा ड्यूटी है. ये कोई ड्यूटी नहीं, ये सेवा है. ब्राह्मण समर्पित होकर सेवा करते हैं. ब्राह्मण का जीवन है ये, जगना चाहिए. ब्राह्मण समर्पित होकर सेवा करते हैं. ऑफिशियल ड्यूटी ब्राह्मण नहीं करते हैं. जो ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं वो तो शूद्र है. हमने देखा सुबह सुबह शूद्र निकल गए सब. कहां जा रहे हैं? गुड़गांव
गुड़गांव जा रहे हैं। क्या बनेंगे, गोरू बनेंगे या गुड़ बनेंगे मुझे पता भी नहीं है। गुड़ खाने के लिए जा रहे हैं। शूद्र सुबह से शाम तक काम करना। वो ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं। वैष्णव कभी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करते। सेवा में प्राण होता है, समर्पण होता है, दो चीज होता है। अगर प्राण आपका नहीं है तो सेवा करना संभव नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं है, प्राण होना चाहिए। एक लाइफ, हम लोग का लाइफ है, हम लोग का जीवन, शूद्र लोग का भी जीवन है, ब्राह्मण लोग का जीवन है। शूद्र जीते हैं भूख के लिए, ब्राह्मण जीते हैं समर्पण के लिए। हम लोग ब्राह्मण हैं। हम तो जाति पाति में ब्राह्मण है क्या? आप ब्राह्मण इनिशिएशन ले लिए? नहीं लिए। जब ले लेते हैं ना तो पता चलता है हम पारमार्थिक ब्राह्मण हैं। परमार्थ में, जाति पाति में हम तो ब्राह्मण नहीं है। परमार्थ स्तर पर हमको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण का मतलब दो चीज हम सुने ना, क्या है? पहला क्या चाहिए? समर्पण और प्राण। शूद्र लोग का प्राण नहीं है, उसको थोड़ा पिटाई होता है, शासन होता है, वो काम करते हैं। देखिए ना, शूद्र लोग को डांटते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, हमको प्रेसिडेंट बोलेंगे तो हम करेंगे। हम शूद्र नहीं है। अथॉरिटी बोलेंगे ये करो करो करो, मंगलारती आओ, गुरु पूजा आओ, ये शूद्र बुद्धि है। हम शूद्र बनने के लिए नहीं आए। शूद्र को फोर्स करना पड़ता है क्योंकि उसका स्पिरिट नहीं है, लाइफ नहीं है। बार बार उनको पुश करना होता है। पता है ना आपको, हर दिन ऑफिसर लोग आते हैं, वो ऑफिस को देखते हैं, एक इधर झाड़ू क्यों नहीं लगा है? देखिए ना आप, हर दिन ऑफिसर लोग को कहना पड़ता है शूद्र को, क्योंकि शूद्र का आदत होता है ना। उसका तो लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, मजबूरी से कर रहा है, पैसा के लिए कर रहा है। प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, प्राण नहीं है। लेकिन जो वैष्णव होते, ब्राह्मण होते, उस स्वाभाविक जीवन होता है, नेचुरल लाइफ। हम लोग का नेचुरल जीवन है। प्रभुपाद जी ने सिखाया हम लोग को। इस आर्टिफिशियल लाइफ, एक शूद्र जीवन कृत्रिम बोलता है ना हिंदी में, आर्टिफिशियल लाइफ। ये रबट बोलते हैं क्या? रबट नहीं, वो जो खिलौना क्या बोलते हैं, डॉल्स, कठपुतली, उसका लाइफ क्या है? उसका क्या लाइफ है? नचाना पड़ता है तब तो नचते हैं। स्विच लगाओ, बैटरी लगाओ, तब तो नचते हैं। ये शूद्र जीवन है। ब्राह्मण जीवन स्वाभाविक जीवन है। पुश नहीं करना पड़ता है, हमको करना है। लाइफ है ना, हमको करना है ममता से, प्रेम से। प्रभुपाद जी ने यही सिखाया है। प्रभुपाद को उस जमाने में आप देख लीजिए, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, भारत सरकार उनको कुछ दे रहे थे क्या? कोई सर्टिफिकेट दे रहे थे, पैसा दे रहे थे? कहाँ निकाला है? पेपर से निकाला है कि स्वामी प्रभुपाद ने गए हैं, प्रचार कर रहे हैं? कुछ नहीं, ना तो सम्मान, ना तो अर्थ, कुछ नहीं था, लेकिन जीवन था। प्राण प्राणा छे जार से हेतु प्रचार। कृष्ण भक्ति समर्पण प्राण होता है। ये ब्राह्मण का जीवन है। हम भक्त बने समर्पित होने के लिए। प्राण ड्राइव लाइफ नहीं है, दोनों का जीवन होते। भोगी का भोग जीवन है, भक्त का समर्पण जीवन है। भोगी लोग होते हैं ना, भोग उनका जीवन है। सुअर जैसा देखिए, सुबह से शाम तक घूमता है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं ना, किसी लिए घूमता है? कोई बेस्ट चीज के लिए? मल खाने के लिए। मल खाने के लिए घूमता है, पूरा बिजी रहता है, 24 आवर बिजी। भोगी का यह आदत है। हम लोग का आदत अलग है। हम लोग का क्या आदत है? हम लोग का स्वाभाविक जीवन है। भक्त लोग का जीवन स्वाभाविक होना चाहिए। हम कोई बच्चा नहीं है। कितना उम्र है आपका? 23। शायद अभी शादी के लिए प्रपोजल शुरू हो जाएगा, अभी तो ब्रह्मचारी है।
अभी है ना, आपको कोई पुश करेगा ऑफिस जाने के लिए? काम करने के लिए ऑफिस में कोई पुश करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए किसको पुश करना पड़ता है? साउंड थोड़ा बढ़ाइए ना, एडजस्ट कर दीजिए साउंड, हाँ थोड़ा क्लियर कर लीजिए। पुश करना नहीं पड़ता है, शूद्र का भोग बुद्धि होता है ना, इसलिए भोग के लिए वो पीछे पीछे रहता है, भोग में उनको आनंद मिलता है। हम लोग अलग है, हम लोग को समर्पण होना है, जीवन को समर्पण दर, तो हमको पुश करना नहीं पड़ता है, हमको स्वाभाविक जीवन होना चाहिए। वैष्णव लोग का जीवन स्वाभाविक जीवन, नेचुरल लाइफ, नेचुरल। जैसा माँ बच्चों लोग को खिलाता है पिलाता है, तो कहना पड़ता है माँ को, माँ तुम कुकिंग करो। माँ को कोई पुश करता है क्या? स्वाभाविक प्रेम है। हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो स्कूल है, जैसे प्रभुपाद जी हाँ बोलते हैं, हमारा जो स्कूल है कृष्णा कॉन्शसनेस है, इसमें नेचुरल हम होना चाहिए। क्या नेचुरल? स्वाभाविक क्या होना चाहिए? समर्पण। गुरु और कृष्ण के लिए जीवन समर्पित करना है। शहीद बनते हैं ना, नहीं, हमको शहीद बनना है। मरने के लिए लाल कपड़ा लोग पहनते हैं, पता है ना आपको? प्रभुपाद जी कहाँ लिखे हैं? दक्ष यज्ञ में सती ने जब आहुति देने के लिए प्रस्तुत हुए तो कपड़ा चेंज कर लिए। जो कपड़ा है ना लाल कपड़ा वाले, ये इंडिकेट करता है भोग के लिए नहीं। कभी कभी ब्राह्मण लोग, देखिए उड़ीसा में देखा हूं, ब्राह्मण लोग उस सादा कपड़ा पहनने को पसंद नहीं करते हैं, है तो गृही, लेकिन वो कभी कभी लाल कपड़ा और हल्दी कपड़ा पहन लेते हैं। लोग सोचे कि मैं साधु। ये समर्पण जीवन, समर्पित जीवन, इस शरीर को छोड़ने के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं। शरीर को छोड़ना तो आत्महत्या बोलते हैं हिंदी में। आत्महत्या करना तो शरीर छोड़ना है, हम और आत्महत्या और हमारा शरीर छोड़ने में क्या पार्थक्य है? हम सेवा करके हमारे जीवन को ठाकुर चरण कमल में समर्पित करके शरीर को छोड़ना। ये नेचुरल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं। समर्पण में प्राण होता है। ये ब्राह्मणिकल कल्चर है। शूद्र बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। ये सोसाइटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, वी आर क्रिएटिंग ब्राह्मण्स। हम ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण हेड है, हेड पर्सन। ना तो ये हैंड है, ना लेग है, ना बेली है। हर समय हमको लीड करना है। जो खुद को लीड नहीं कर रहा है वो दूसरे को लीड करेंगे। जिसका खुद का बुद्धि नहीं काम कर रहा है, खुद का इंस्पिरेशन नहीं है, खुद का कोई एनर्जी नहीं है, खुद का जीने का जो जिसको मुश्किल फील हो रहा है, वो दूसरों को कैसे पुश करेगा? तो जितना मेटेरियल थॉट्स है, आर्टिफिशियल लाइफ है, इसको छोड़ना है भक्ति जीवन में। ये स्वाभाविक जीवन होना चाहिए। ये ब्राह्मणिकल कल्चर का मतलब यही होता है। अब देखिए ना, ब्राह्मण लोग पहले जमाने में बहुत सुंदर, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में तो आजकल थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उनका समर्पण आपको पता है कैसे है? चंदन यात्रा जब होता है, ठाकुर जी निकलते हैं कितने दिन के लिए? 21 डेज के लिए। जब 15 डेज हो जाता है, उसका बाद ठाकुर जी लौटते लौटते रात 3 बज जाता है, 4 बज जाता है। और ठाकुर जी के लिए वो क्या करते हैं, मंदिर में एक गामछा, छोटा गामछा बोलते हैं ना, गामछा ऐसा, इसमें सो जाते हैं और 3 बजे तक उधर ही जगते रहते थे, ठाकुर जी कब आएंगे। उस फिर शयन देते हैं ठाकुर जी को, घर में वापस जाते हैं। इस समर्पण जीवन, ठाकुर जी का यत्न करना, सेवा करना एक समर्पण बात है। केयर नेचर बोलते हैं ना, ये पूरा यत्नशील, प्रयत्नशील होना चाहिए ब्राह्मण। मां जैसा है ना, मां का क्या है? बच्चों लोग का केयर करना, छोटा बच्चा का केयर करना। उठाती है, अब देखें ना, उठाती है सावधानी से,
सुलाती है सावधानी से, भोजन कुछ भी, कपड़ा वगैरह भी चेंज करती है बहुत सावधानी से। हमारा जो सेवा है ऐसा ही, बहुत सावधानी से करना है, समर्पित होकर करना है। आर्टिफिशियल कभी एक कृत्रिम जीवन में हम अगर भक्त है, हमारा कोई नेचुरल स्पिरिट नहीं है, जीना मुश्किल हो जाएगा। कितना दिन आपको कोई पुश करेगा, क्योंकि आपका मन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्राह्मणिकल कल्चर में ब्राह्मण का मन इतना सतेज होता था, इतना ताजा सतेज और उत्साह, इतना उत्साह उनका मन में है। राजा लोग, ये ब्राह्मण जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, तो विश्वामित्र तो बाद बने, वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण लोग पत्नी को लेकर रहते थे, लेकिन भगवान श्री राम, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा लोग उनके चरण कमल पर आते थे। वो राजा लोग को इंस्पिरेशन देते थे, तुमको ये करना है, राज्य ऐसे चलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो सोच लीजिए ब्राह्मण का कितना बड़ा स्पिरिट है। ब्राह्मण और वैष्णव, हम लोग वैष्णव है ना, विष्णु भक्त है, हम स्वाभाविक ब्राह्मण है। हमारा नेचुरल क्वालिटी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का कितना गुण है भागवत में? नहीं, पढ़ाई करना चाहिए ना प्रभुपाद किताब को। 12 गुण युक्त ब्राह्मण प्रभुपाद ने लिखे ना, सनत सुजाता, प्रहलाद महाराज टीचिंग, स्तुति में देख लीजिए, गीता में तो है, समदम तपो शौचम। भजन करने से ये गुण चला आता है। तो आप बोलेंगे मैं भजन कर रहा हूं, मेरा ये गुण क्यों नहीं आ रहा है? तो भजन कर रहे हैं आप, समर्पित नहीं, समर्पण होना चाहिए। ठाकुर जी गुण दे देते हैं, हमारा नेचुरल क्वालिटी नहीं, हम जन्म से हम शूद्र है, शूद्र वृत्ति है। जय श्री श्री पार्थ सारथी भगवान की जय। Prabhupada ji, in this verse we find the word these are indicating that the student was a Brahman. Actually in those days only member of Brahman classes become student of Vedic literature. पहले जमाने में प्रभुपाद जी, ये भी आप सुने हैं ना, गौतम ऋषि का वो शिष्य था जाबाल, सत्यकाम। सत्यकाम गए थे कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? किसका पास? गौतम ऋषि का पास। गौतम ऋषि ने उनको पूछा, तुमका गोत्र कौन है, तुम्हारा गोत्र कौन है? पहले जमाने में गोत्र होता है, हमारा गोत्र क्या है पता नहीं आपको? पता होना चाहिए। अच्युत गोत्र, कश्यप गोत्र, गोत्र होता है कि नहीं? हमारा गोत्र, जब हम दीक्षा ले लेते, वैष्णव हो जाते हैं ना, हमारा गोत्र परिवर्तन हो गया। इसलिए जैसे मर जाने का बाद कर्मकांड में जो पद्धति होता है ना, क्या करते हैं हम, उद्भूत वगैरह के लिए करते हैं ना कुछ काम, हमारा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम कर्मकांड, वेद का जो कर्मकांड है हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। हम अच्युत गोत्री हो गए, हमारा पतन कभी नहीं होगा, हम नरक कभी नहीं जाएंगे, कभी भक्त कभी नरक नहीं जाएगा। नरक कब जाएगा भक्त? ये 1-2 कंडीशन है, नहीं तो ये नरक जाने वाले नहीं भक्त। हम अच्युत गोत्री है। पहले जमाने में जैसे सत्यकाम, वो गए थे पढ़ने के लिए, गौतम ऋषि ने मना किया, तुम्हारा गोत्र कौन है? बोला मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे क्या पता है, मैं तो पढ़ाई करने आया हूं ना, तुम जाओ माता जी को पूछो। मां जी साफ सुथरा बोल दिए, बिल्कुल खुलम खुला बोल दिए, बेटा मुझे पता नहीं है तुम्हारा गोत्र कौन है, मैं तो परिचारिका दासी थी, किससे तुम पैदा हुए हो मुझे पता नहीं, जाओ बोल दो तुम गौतम ऋषि को। तो मां कैसी थी? है तो परिचारिका दासी थी, लेकिन खुलम खुला बोल दिए। ये ब्राह्मण का क्वालिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर होना चाहिए, खुलम खुला बोलना चाहिए।
कपटी भाव कभी मन में नहीं रखना चाहिए। ये भजन नहीं होता है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है सरल, सिंप्लिसिटी। सबसे बड़ा गुण, जो सरल नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। और ये सरल गुण सिर्फ ब्राह्मण में नहीं है, भक्त वैष्णव में, विष्णु भक्त में, आर्यवम सरल होना चाहिए। सरल का मतलब यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स, अनफ्लिंचिंग फेथ एट द लोटस फीट ऑफ गुरु एंड कृष्ण। ये सरल है। गुरु और कृष्ण की चरण कमल में दृढ़ विश्वास और स्ट्रेट बिहेवियर, मुकड़नेस नहीं। तब गौतम ऋषि ने बहुत खुश हो गए। सत्यकाम, उनका नाम बाद में पड़ा सत्यकाम। तो हमको कोई बोलेंगे, हमारा माता अगर बोलेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या मुझे पता नहीं, हम किसको बोलेंगे? आजकल तो क्या आपका खुद का कास्ट को चेंज कर देते हैं, होता कि नहीं? खुद का जो कास्ट है, अगर लोअर कास्ट है ना, उसको टाइटल बोलते हैं, टाइटल को चेंज कर देते हैं लोग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरा टाइटल, चेंज कर दो। वो ब्राह्मण क्वालिटी के थे, साफ सुथरा बोल दिए, पूरा स्पष्ट बोल दिए। तब गौतम ऋषि ने बोला तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो। पहले जमाने में ये वेद पढ़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन था, जैसा वो कास्टिज्म बोलते हैं ना। लेकिन वैष्णविज्म में ये नहीं है, कास्टिज्म नहीं है। तुम ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, लेकिन तुम इधर आ जाएंगे ना, तुमको नेचुरल वैष्णव बनना है, परमार्थिक ब्राह्मण बनना है। अगर हम परमार्थिक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ठाकुर जी को प्राप्त करना मुश्किल है। पारमार्थिक ब्राह्मण में, जो पारमार्थिक ब्राह्मण होते हैं, इसमें सबसे बड़ा गुण यही होता है, उनका नेचुरल लाइफ, समर्पित जीवन होता है। जीवन समर्पण होना चाहिए। ब्राह्मण लोग का ये सबसे बड़ा गुण है। समर्पण जीवन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे समर्पित हूं, तो सुख किसका है? मेरा कुछ नहीं है, समझते ना? तो आपका कुछ सुख नहीं है। भक्त बनने का मतलब खुद का सुख छोड़ देना है। डिमांड, नो डिमांड, जीरो डिमांड। समर्पित जीवन का मतलब यही है, जीरो डिमांड और 100% सर्विस। ये ऑफिशियल लाइफ नहीं है, ब्राह्मणिकल लाइफ ऑफिशियल लाइफ नहीं है, आनुष्ठानिक जीवन नहीं है। अनुष्ठानिक जीवन क्या होता है? इसमें फिक्स रूल्स, रेगुलेशंस, फिक्स ड्यूटी। इतना करना है, ये कानून पर करना है, मुझे इतना प्राप्त, ये है ना। ये कंडीशनल हो गया, ये शर्तमूलक हो गया। वो सेवा नहीं है तो कोई वैष्णव, लेकिन वो सेवा कर रहा है कोई कंडीशन में, वो सेवा नहीं है। उसको सेवा का फल नहीं मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। कर रहे ठाकुर जी के लिए ना, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन उनका कंडीशन है, शर्त है, भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। इसलिए कई साल से भजन करने वाले का मन में ये प्रश्न है, कई दिन से भजन कर रहे हैं, मैं तो दीक्षा लिया हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरा भक्ति क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा मनोभाव क्या है? तुम समर्पित हो कि नहीं? अगर तुम सकामवादी हो, तुम्हारा कंडीशन है, तुम्हारा भक्ति में शर्त है, तुमको भक्ति का फल नहीं मिलेगा। पहले जमाने में जो ब्राह्मणिकल कल्चर था, इसमें पहले रेगुलेटिव लाइफ, ब्राह्मण का जीवन क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रेगुलेटिव लाइफ, अनुशासित जीवन, श्रृंखलित जीवन, हाइफाइजेड लाइफ नहीं है। आपको जो पसंद लगेगा आप ये करेंगे। ब्राह्मण का ये जीवन नहीं, उनको करना ही है फिक्स टाइम पर। ये भो लेकर करते हैं, संकल्प लेकर। हमारा भी संकल्प है, वैष्णव धर्म में, भक्त में संकल्प है, व्रत है। व्रत मजबूरी में नहीं करना पड़ता है, फोर्सफुली नहीं करना पड़ता है, नेचुरली करना पड़ता है।
है ना। हम क्या करते हैं, हम जितना व्रत करते हैं, काल एकादशी है, आज से शुरू हो गया मन में, काल एकादशी है ना, सोलमाला करना है। कितना कितना परेशान लगता है हमको, सोचता है ये सबसे बड़ा बर्डन जीवन में है। व्रत कोई आनंद में कर रहा है ये नेचुरल लाइफ नहीं है। जब आपका जीवन स्वाभाविक नहीं है, वैष्णव पथ पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्वाभाविक जीवन होना चाहिए। कई बार मैं ये बोलता हूं, जैसे बीएसएफ वाले, सिक्योरिटी फोर्स वाले, जो बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स वाले, मरते कि नहीं? कश्मीर वाले उनको मारते कि नहीं? फिर लोग जैन करते कि नहीं? जो लोग जैन किए हैं, कश्मीर में हैं, उनको पता है कभी कभी भी हम मर जाएंगे। वो पैसा के लिए उधर है क्या? देश के लिए। उनका मन में एक स्वाभाविक क्या बोले फोर्स है, मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा। तो हम लोग का जीवन ऐसा होना, मरूंगा इस्कॉन में ही मरूंगा, गुरु और कृष्ण के लिए, वापस नहीं जाना है, पीछे नहीं हटने वाले। ये स्वाभाविक जीवन हो गया, नेचुरल लाइफ हो गया। जो भी ताकत है उसको लगाना है गुरु और कृष्ण के लिए। ये ब्राह्मणिकल लाइफ है, स्वाभाविक जीवन है ना, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं। जैसे पेड़ है, पर्वत, पर्वत बोलते हैं ना हिंदी में, पर्वत का ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसको पानी कौन देता है? केजरीवाल गवर्नमेंट देता है या मोदी देता है? पहाड़, पत्थर का ऊपर आप देख लीजिए, पत्थर का ऊपर कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। और इधर जो डेकोरेटिव में हम करते हैं ना, क्या क्या, किसमें? गमला में, उसमें छोटा छोटा, नहीं छोटा छोटा पट में हम रखते हैं फूल वगैरह। 2 दिन पानी नहीं दिए तो मुरझा जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। उसको पानी देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। उधर कौन पानी देता है? कौन केयर करता है? ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि उनका नेचुरल, वो पत्थर में है लेकिन उनका इतना ताकत है, वो पानी खींचता है। ये इसका शक्ति नहीं है, जो छोटा पट में है ना, उसका शक्ति नहीं है, उसको देना पड़ता है। पहले हम जब न्यू डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा भक्त लोग फीड करते हैं, प्रसाद लो, चैंटिंग करो, तीर्थ चलो, यात्रा चलो, इधर चलो। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा बच्चा को देखिए, मां पहले खिलाती है ना, बढ़ जाने के बाद वो खुद खाना लगता है। हम लोग को ऐसा होना चाहिए, बार बार बोलना नहीं पड़ता है, तुम ऐसा करो करो करो, सेवा करो सेवा करो, भोजन करो, भोजन प्रसाद लो, बोलना पड़ता है। तुम आओ ठीक सही टाइम पर प्रसाद लो, बोलना पड़ता है। शरीर के लिए जैसा स्वाभाविक आकर्षण है, भक्ति के लिए ऐसा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए। ये ब्राह्मणिकल लाइफ है। भक्ति के लिए एक स्वाभाविक जीवन होना चाहिए। बोल, ये मंदिर आपका घर है, आपका घर कहां था? आनंद विहार के पास। नाम तो आनंद विहार, आनंद मिल रहा था तो इधर आए क्यों? तो आनंद विहार छोड़कर ठाकुर जी का चरण कमल में आप है ना, ये आपका घर है। कोई भी भक्त लोग चाहे गृहस्थ हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए मेरा घर घर है। गुरु जी का आश्रम को पहले जमाने में क्या बोलते हैं पता है आपको? गुरु गृह। खुद का घर तो घर नहीं है वैष्णव लोग के लिए, वो कुछ नहीं है। घर गृहस्थी चलाने के लिए, काम चलाने के लिए कोई घर है वगैरह, क्योंकि माता जी लोग को अलाउ नहीं है इधर रहने के लिए, वो रह जाए। घर तक गुरु का गृह है, और गुरु गृह में सेवा करना है आपको, समर्पण है। देखिए राम जी का जीवन देखिए, लक्ष्मण का जीवन देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, गुरु जी का सेवा कैसे करते थे। स्वाभाविक जीवन। ठाकुर जी को भेज दिए मां ने, चलो लकड़ी लेकर आओ, चले। गुरु जी की सेवा करना, गुरु जी घर में रह रहे हैं। ये ट्रेनिंग था।
भगवान ने यही सुदामा को बोल रहे हैं, नाहं युज्या प्रजातिभ्या तपसोपसमे नमा तुष्यहं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सुदामा, कोई ब्रह्मचारी बनता है, मैं इसमें इतना प्रसन्न नहीं हूं। कोई शादी वगैरह, शादी झमेला है, ठीक है, मैं साधु बन जाऊंगा। झमेला की वजह से साधु बन जाते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं, आलसी बन जाते हैं, इसमें ठाकुर जी कुछ खुश नहीं होते। सेवक बड़ा होता है, ना तो ब्रह्मचारी बड़ा है, या ना तो सन्यासी बड़ा है, ना तो गृहस्थ बड़ा है। जो सेवा करता है वो बड़ा होता है। भगवान की, ये भगवान की मत है, मेरा मत नहीं, भागवत की मत है। नाहं इज्या प्रजातिभ्या, इज्या ब्रह्मचारी, प्रजातिभ्या गृहस्थ, उपशमन वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। एंड में हम कौन है? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का काम क्या है? तो सन्यासी दास हुआ कि नहीं? गुरु दास हुआ कि नहीं? ब्रह्मचारी दास हुआ कि नहीं? तो दास का काम क्या है? जो दास ज्यादा सर्विस करता है वो सबसे बड़ा सेवक है। सेवा है। तुष्य अयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु जी की सेवा में मैं जितना संतुष्ट होता हूं, ना तो ब्रह्मचारी धर्म में, गृहस्थ धर्म में, वानप्रस्थ धर्म में, संन्यास धर्म में मैं खुश नहीं होता। ठाकुर जी ने सिखा है ब्राह्मणिकन कल्चर क्या है, कैसे रहना है, कैसे खान पान होना चाहिए, कैसे स्वाभाविक जीवन होना चाहिए, कैसे समर्पित जीवन होना चाहिए, कैसे रेगुलेटिव लाइफ, एक अनुशासित जीवन, बहुत रेगुलेटिव लाइफ होना चाहिए ब्राह्मण लोग का। हम लोग पारमार्थिक ब्राह्मण स्तर पर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, 16 माला। आप ये कभी नहीं सोचना चाहिए, तो हमारा जो जितना गुण है, भक्ति विनोद ठाकुर ये जैव धर्म में लिखे हैं, कभी गुण के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा ये गुण नहीं है, वो लिख रहे ओ ब्रदर्स, ओ भैया, तुम कभी गुण के लिए प्रयास मत करो, मुझे ये गुण चाहिए, अर्जन करना है, ये अर्जन करना है। भक्ति योग में स्वाभाविक गुण ठाकुर दे देते हैं, जो समर्पित होते हैं, सेवक बनते हैं। गुण के लिए प्रयास करना, ये मतलब टाइम वेस्ट करना है। मेरा ये गुण नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, मुझे एक्वायर करना है, मुझे अर्जन करना है, नहीं। हमको सेवा करना है और ठाकुर जी का भजन करना है। जैसे अस्ति भक्तिर भगवता किंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुरा। हमको भक्ति करना है। कौन सा भक्ति करना है? अकिंचना भक्ति करना है। भक्ति में हर बार एक एडजेक्टिव विशेषण है, अकिंचना भक्ति, निष्किंचना भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्या भक्ति। ठाकुर जी ऐसा भक्ति बोलकर नहीं छोड़ दिए हैं, कभी भक्ति बोलकर नहीं छोड़े। गीता में देख लीजिए ना, कहा ठाकुर जी बोले भक्ति, हर बार एक विशेषण दिए है, अनन्य चिंतयन्तो माम। हम चिंतन करते हैं, लेकिन अनन्य भाव से नहीं चिंतन करते। ये जो एजुकेशन सिस्टम, प्रभुपाद जी बोले, हायर एजुकेशन इज नॉट मींट फॉर एवरीवन, वन सिलेक्टेड इंडिविजुअल ट्रेंड इन ब्राह्मणिकल कल्चर शुड बी अलाउड टू परस्यू हायर एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एम टू टीच टेक्नोलॉजी। हमारा ये हायर एजुकेशन है। भक्ति ये है ना, ये वर्णाश्रम सिस्टम का ऊपर है। कभी हमारा सिस्टम में कभी गृहस्थ नहीं सोचना चाहिए मैं गृहस्थ हूं, नहीं, कृष्ण दास है। गृहस्थ के लिए कितना % देना चाहिए? 50। ये वर्णाश्रम सिस्टम है। भक्ति सिस्टम में सब गुरु का है। 50% कमाई में गृहस्थ देना है, तो ये क्या है? वर्णाश्रम के सिस्टम के हिसाब से। लेकिन भक्ति के हिसाब से ये शरीर जब गुरु जी का है, तुम्हारा धन किसका है? शरीर गुरु जी का है, तुम गुरु जी का दास बनो। हमारा सिस्टम अलग है। हमारा एजुकेशन हायर एजुकेशन है, वर्णाश्रम सिस्टम से ऊपर है।
पहले जमाने में सब कुछ समर्पित करते थे, सब कुछ। आप शिष्य जब बनते हैं, ब्रह्मचारी शिष्य बनते हैं, गृहस्थ शिष्य नहीं बनते हैं, उनका नाम भी शिष्य है। ठाकुर जी ने क्या बोले हैं 10वां स्कंद में, एततेव हि सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, यही सत्शिष्य का कर्तव्य है। गुरु निष्कृतम, गुरु ऋणों शोधनार्थम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे हैं, गुरु जी का ऋण, ऋण मिलते हैं ना, ऋण को शोधन करने के लिए कृष्ण तुम जैसे सेवा की है ना, ऐसा ही सेवा करना चाहिए शिष्य लोग। ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए है क्या? सबके लिए, सबके लिए। ब्राह्मणिकल कल्चर, इसका मतलब यही है, प्रभुपाद जी का एम यही था, एक सुंदर स्वस्थ समाज बनाना। आजकल समाज क्या है? आजकल इस शूद्र समाज है, सब हॉट मूड में है। क्या बोले, पूरा बुद्धि इतना बिगड़ गए हैं, थोड़ा थोड़ा बात पर झगड़ा लग जाता है। और जो नेता लोग हैं वो तो पॉलिटिक्स में, ये दुर्योधन से भी और खतरनाक आदमी बन गए सब। और पास में शकुनी वगैरह भी है, वो गए। और आजकल ब्राह्मण का स्वभाव तो वो बिगड़ गए। समाज में क्या हालत है आप देख लीजिए। अभी कहां भी देखिए, अभी अगर भारतवर्ष नहीं समग्र विश्व का फ्यूचर कब सिर्फ इस्कॉन है। अगर फ्यूचर भारत विश्व का कोई फ्यूचर है तो इस्कॉन है, क्योंकि गाइडलाइन के लिए हमारा पास सब, जैसा जितना पॉइंट है, जितना सोसाइटी को लीड करने के लिए जितना प्रिंसिपल है, सब हमारा पास है। क्यों? भागवत में हमारे पास है, गीता है, हरिनाम है, गाइडलाइंस हमारे पास है। प्रभुपद का जो दायाद होते हैं, हम लोग जैसा दायाद है, हमको प्रैक्टिकली होना होगा। अब देखिए इस्कॉन के नाम पर कितना लोग कितना बात बोलते हैं, लेकिन लोग कहां जाएंगे? वही इस्कॉन मंदिर पर ही आएंगे। हमको इतना गाली देते हैं, जन्माष्टमी पर आएंगे ही मंदिर को, कहां जाएंगे? कृष्ण अगर कहां है क्या? तो मंदिर है, कृष्ण नहीं है, इस्कॉन में है भगवान। वो गाली देते हैं हम लोग को, उड़ीसा में बहुत गाली देते हैं, बहुत पेपर में निकालते हैं, लेकिन जब रथ यात्रा होता है और जन्माष्टमी होता है, हमारा पांव आते हैं इस्कॉन। क्यों आते हैं? हमारे पास सब कुछ है, ओरिजिनल चीज सब है, और संसार में सब डुप्लीकेट चल रहा है। जो जितना ओरिजिनल चीज हमारे पास है, हरिनाम है और प्रसाद है। प्रसाद कौन बोले? और आप बोले प्रसाद है। इस्कॉन को लोग पसंद करते हैं 3 काम के लिए, पहले हरिनाम, और दूसरा प्रसाद, और तीसरा सुंदर, नीट एंड क्लीन। ठाकुर जी इतना सुंदर साज सजा होता है ना, इसको देखकर लोग आते हैं। वैकुंठ है ना, बाहर वैकुंठ है, नरक है। नरक में क्या उनको सुख मिलेगा? वो तो आएंगे वैकुंठ को, जाएंगे कहां? हम लोग का ये काम है, सही ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनने के लिए हमको समर्पण चाहिए, समर्पित होना है, दिन रात, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी गुरुजी बुलाए हैं सेवा के लिए आना है, कब भी आना है। मैं पढ़ रहा था एक किताब में, विश्वामित्र का एक लड़का था, विश्वामित्र को एक लड़का था, वो लड़का भी था और गुरुजी भी था, शिष्य भी था विश्वामित्र का। इंद्र ने, पहले जमाने में देखिए कैसा ब्राह्मण कल्चर था, कितना समर्पित जीवन था। इंद्र ने झूठ मूठ परीक्षा करने के लिए वशिष्ठ के बेस में आ गए। किसको परीक्षा करने के लिए? विश्वामित्र को। पहले जमाने में आपको तो पता है ना, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों का बीच बहुत झगड़ा था, लेकिन झगड़ा समाप्त हो जाने का बाद धर्मदेव ने, इंद्र नहीं, धर्मदेव ने आया था, धर्मदेव ने आया था परीक्षा करने के लिए। इसका झगड़ा तो मिट गया, लेकिन मन में झगड़ा मिटा कि नहीं? बाहर से झगड़ा मिट जाता है, मन में नहीं मिटता है। मन में ये जो दोष है, जो रोष है, वो पक जाता है। भक्ति जीवन में कभी ऐसा नहीं रखना चाहिए।
जो सरल होते हैं ना, आप भक्त बन सकते। ब्राह्मण का यही काम है, जल्दी जल्दी बुद्धि से सब कुछ पास कर देना। बुरा चीज को पकड़ कर रखेंगे, भजन नहीं होगा। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मनी है, ये मुझे बुला है, ये ऐसा बुला है, नहीं, उसको पास करो जल्दी से जल्दी। पास कैसे करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र भीतर घुसेंगे तो उसको उपास होगा। भजन करेंगे तो छोटा मोटा चीज जो है ना उसको निकाल देना चाहिए। तो धर्मदेव ने ये सोचा कि सही भाव से दोनों का झगड़ा बाहर तो मिट गया है, मन में मिटा कि नहीं, वो वशिष्ठ रूप से आए, धर्मदेव ने आए। तो विश्वामित्र को पता चला कि वशिष्ठ आ रहा है। वो पूजा का उपकरण लेकर, फूलमाला वगैरह सब कुछ लेकर आए। जब आए, ये तो धर्मदेव आए थे परीक्षा करने के लिए, वो अंतर्हित हो गए, चले गए। 100 साल खड़ा होकर रहे विश्वामित्र ने। मन इतना पवित्र हो गया था। पहले कितना झगड़ा चल रहा था ब्राह्मण के लिए, दोनों का बीच झगड़ा चल रहा था। कभी उनको नहीं बोल रहा था कि स्वर्ग सृष्टि किए है ना कौन? विश्वामित्र। अपना तप, खुद का तप बल में स्वर्ग सृष्टि कर दिया। क्या बोले? डुप्लीकेट स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने रोका है, तुम स्वर्ग क्यों सृष्टि कर रहे हो? नहीं, मुझे ब्रह्मर्षि बनाए। अरे तुम राजर्षि हो। नहीं, मुझे ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मर्षि बनना है। तुमको ब्रह्मर्षि बनना है? तुमको अगर ब्रह्मर्षि बनना है, कोई ब्रह्मर्षि तुमको ब्रह्मर्षि बोल देंगे तो तुम ब्रह्मर्षि हो जाए। मनवापी कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई ब्राह्मण स्वीकार आपको करना चाहिए। भक्त ऐसे भी नहीं होते हैं, जैसे हम गुरुजी हमको स्वीकार कर लेते तम भक्त बन जाते। मनमापी नहीं, ये सर्टिफिकेट वाले काम नहीं है। लॉयर जैसे सर्टिफिकेट ले आते हैं, क्या बोलते, कोट, ब्लैक कोट लगा लेते हैं, मैं लॉयर हो गया हूं। ब्राह्मण और भक्त जीवन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई आपको स्वीकार करेंगे, दूसरा ब्राह्मण दूसरा भक्त, तब तो आप बनेंगे। तब उन्होंने क्या किए, दोनों का बीच इतना, जब भी ये मिल रहा था, कौन? विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ मिल रहे थे। वशिष्ठ देखते हैं ना विश्वामित्र आ गए तो उनको बोलते हैं, राजर्षि तुम कैसे हो? ब्रह्मा जी ने बताया ना विश्वामित्र, वशिष्ठ अगर बोल देंगे कि तुम ब्रह्मर्षि हो, तुम ब्रह्मर्षि बन जाएंगे, चलो। तो वो घूम फिरा कर हर समय वशिष्ठ के सामने आ रहे थे। कौन? विश्वामित्र। लेकिन हर बार ये बोल रहे थे, राजर्षि हो, राजर्षि हो। इतना गुस्सा हो गए, 100 लड़का को मार दिए विश्वामित्र ने। अगर मैं मार दूंगा, एक एक कर मारे, मैं मार दूंगा तो वो मुझे ब्रह्मर्षि बोलेंगे। फिर भी ये नहीं बोले, तुम तो ब्रह्मर्षि नहीं हो, ब्राह्मण का गुण नहीं है, मैं थोड़ा बोलूंगा। मेरा लड़का मर जाए तो मर जाए। 100 लड़का मर गए। अंतिम में वो मारने के लिए आए। विश्वामित्र ने, कौन बुला रहे हैं? ये तलवार लेकर आए मारने के लिए, वशिष्ठ को मारने के लिए आए विश्वामित्र। देखिए ये ब्राह्मण पदवी चाह, कौन सा पदवी चाह रहा है? ब्रह्मर्षि पदवी। लेकिन भीतर क्या है? कौन सा गुण है? क्षत्रिय गुण। मैं मार दूंगा, पता है। इसीलिए वो कभी ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहा था, राजर्षि बोल रहा था। जो रात के समय है, पास में बैठे हैं, अरुंधति बैठे वशिष्ठ का पास, दोनों का बीच चर्चा चल रहा है। और दोनों का बीच जब चर्चा चल रहा है, तब विश्वामित्र की चर्चा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे पत्नी का पास। अरे इधर मारने के लिए विश्वामित्र पीछे बैठे तलवार लेकर। योचना बोलते हैं ना, क्या? चंद्रमा। चंद्रमा बहुत सुंदर किरण देती थी। और अरुंधति बोल रहे थे, चंद्रमा का किरण कितना सुंदर है स्वामी, देखिए। और वशिष्ठ बोल रहे थे, आजकल ये चंद्रमा का जैसा किरण उज्जवल है ना, विश्वामित्र का तप ऐसा उज्जवल है। और मारने के लिए विश्वामित्र पीछे बैठा था। वो पागल हो गया, अरे मैं जिसको मारने के लिए आया हूं, ये मेरा प्रशंसा कर रहा है। वो तलवार को फेंक कर आए, गिर गए चरण कमल में।
तब वशिष्ठ ने बोले, उठो ब्रह्मर्षि, अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, पहले से राजर्षि थे। दोनों का झगड़ा मिट गया। लेकिन धर्मदेव को नहीं पता, धर्मदेव ये चाहते थे कि मन में ये झगड़ा गया कि नहीं, इसलिए वो गेस्ट बनकर आए थे, वशिष्ठ रूप से आए थे। और विश्वामित्र ने 100 साल खड़ा होकर रहे। ब्राह्मणिकल कल्चर में कभी क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिंग नेचर जो होता है ना, क्या बोले अंग्रेजी में, जैसा प्रतिक्रिया, एग्रेसिव नेचर होता है। टिट फॉर, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टिट फॉर टेट, ये इधर प्रिंसिपल नहीं। वो ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा, ये भक्ति जीवन नहीं, बिल्कुल ये भक्ति जीवन नहीं, ये कर्मी लाइफ है। जो भी जो कर रहा है उनका फल तो मालिक पार्थ सारथी देंगे, हमको क्या बोलना है। ये भक्ति जीवन, भक्ति जीवन में बहुत सरल बनना है। तो आप बोलेंगे मैं सरल बनूंगा तो लोग मुझे ठग देंगे। आजकल भक्त लोग का बीच में ये डर आ गया, मैं अगर सरल बनूंगा तो सब लोग मुझे ठग देंगे। सब लोग तुमको ठग देंगे, ठाकुर जी नहीं ठगेंगे। और सब लोग तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठाकुर जी अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर क्या हालत होगा। सरल बनना है हमको, सिंपल लाइफ लीड करना है, ठाकुर जी मदद करेंगे। ये ब्राह्मण का जीवन में बोल रहा था ना, उसी समय 100 साल जब खड़ा रहे, वशिष्ठ जी आए थे, मेरा गेस्ट थे, वो चले गए। क्यों चले गए? शायद मेरा कोई दोस्त है। देखिए, वही विश्वामित्र मारने के लिए, वशिष्ठ को मारने के लिए जो तैयार थे, अभी ब्राह्मणसी हो गए, नेचुरल क्वालिटी आ गया। देखिए, गेस्ट चले गए, 100 साल खड़ा रहे, और उसी समय उसका पास उनका लड़का था, 100 साल खड़ा होकर रहे, छाता वगैरह लेकर, अम्ब्रेला वगैरह लेकर 100 साल खड़ा होकर रहे, पिताजी का सेवा की। तब पिताजी 100 साल का बाद जब धर्मदेव आए, बोले कि मैं तुमको परीक्षा कर रहा था, अभी तुम सही ब्राह्मण हो, तुम्हारा मन में कोई द्वेष नहीं। जिन लोग का मन में द्वेष है वो कभी ब्राह्मण नहीं, भक्त नहीं। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रिय चरण, गीता ठाकुर जी बोले ना तो हम लोग का किस पर आसक्ति है, ना तो द्वेष है। कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए। जन्म से हमारा कोई दुश्मन है या दोस्त है? आपका दोस्त कौन है ना कोई? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। आपका दुश्मन नहीं, आपका मन का दुश्मन है, मन का दोस्त है। मन ही दोस्त बनाया है, मन ही दुश्मन बनाया है। तो आप जब मन का अधीन रहते, आप गुरु का चेला है या मन का चेला है? हम मन का चेला है। आजकल गुरु का चेला कितना है? सब मन का चेला है, मुझे पसंद लगता है। नहीं, शिष्य जब बनने का ये मतलब होता है, मन तुम्हारा आज से नहीं है। किसका है? गुरु जी का। जैसे जो माया दास होते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं ना, उनका मन किसका कंट्रोल में है? माया का कंट्रोल। चलो होटल में खाना है, माया बोलता है, मन भागता है। चलो एंजॉय करना है, पार्क चलना है, चलता है माया। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा मन गुरु जी का अधीन नहीं है। तो गुरु जी का अधीन में कैसे रहते हैं? गुरु जी तो कहां घूमते हैं। गुरु जी कैसे हमारा मन को कंट्रोल करते हैं? कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं पढ़ रहे हैं आप प्रभुपाद जी के सामने? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। उसका बाद जितना शास्त्र है, सबसे बड़ा शिक्षा यही पद पर है। इसीलिए प्रभुपाद ने इसको अडॉप्ट किया इस्कॉन में। हर दिन पढ़ना चाहिए। इसमें विधि है और निषेध है। भक्ति जीवन में विधि है और निषेध है। देख लीजिए, ये पद पर विधि कहाँ है और निषेध कहाँ है। विधि क्या है? हम लोग का विधि क्या है? विधि मतलब समझते हैं ना आप? बाउंड, वी हैव टू डू इट। क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य। गुरु जी मेरे लिए गुरु जी जो बोले हैं वो पद्म जैसा निर्मल
कोमल, शीतल, सुंदर, ऐसा ही, इसमें मेरा भलाई होगा, ये विधि है। और आप बोल रहे कि मैं शास्त्र जो बोल रहा है मैं थोड़ा करूंगा, आचार्य लोग जो बोल रहे, दूसरे आचार्य लोग जो बोल रहे मैं करूं, नहीं, चित्ते करिया ऐक्य, वन पॉइंटेड, हृदय में ऐक्य भाव रखना चाहिए। गुरु जी बोल रहे हैं मुझे करना है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, एडस्ट्रक्ट नहीं है, ऐक्य ये लगा है, ऐक्य लगा है। ऐक्य का मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक वन पॉइंटेड से होकर करना है। ये विधि बोले, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, ये विधि। और निषेध, ये इसको करना है और क्या नहीं करना है? आर ना करिय मन्यास, मन में दूसरा आशा नहीं करना, ये निषेध। जितना शास्त्र है सब तात्पर्य ई पद पर है। स्वाभाविक, हम लोग का स्वाभाविक ब्राह्मण का जो हम सुन रहे हैं ना, कल्चर है, ब्राह्मण का लाइफ है, भक्त जीवन, स्वाभाविक हो जाता है। ये पॉइंट को पकड़ लीजिए जीवन में। गुरु जी बोले हैं मुझे करना है, प्रभुपाद जी बोले हैं मुझे करना है, ये आदेश है मुझे करना है। और क्या नहीं करना है? दूसरा कोई आशा मन में नहीं रखना है। दूसरा प्लान जब मन में रहता है वो भक्ति नहीं है। मन में कोई योजना है करने के लिए, गुरु जी का आदेश को छोड़कर, वो भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। अब और ब्राह्मण का ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर हम सुन रहे हैं ना, ब्राह्मण का और एक काम होता है, ब्राह्मण का दो नेचर सबसे अच्छा नेचर है। ब्राह्मण पसंद करते हैं अधीन में रहने के लिए, अधीन में रहते हैं। देखिए ना, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, वो छोटा ब्रह्मचारी, जब पहले जमाने में छोटे ब्रह्मचारी थे, वो बड़े बड़े ब्राह्मण के पास पढ़ाई करते थे, कुछ भी करते थे, कहां भी यज्ञ करने जाते उससे अनुमति लेकर जाते थे, प्रणाम करके जाते थे। ब्राह्मण का ये अधीन में रहना बहुत सुंदर गुण है। वो अधीन में रहते हर समय, पसंद करते। ये ब्राह्मणिकल लाइफ है, हमको अधीन में रहना है। क्या बोले? इंडिपेंडेंट लाइफ, स्वतंत्र जीवन भक्ति जीवन नहीं। जिन लोग का मन में जितना स्वतंत्र भाव है उन लोग को टिकना उतना मुश्किल है। भगवान तो स्वतंत्र नहीं है, तुम कैसे स्वतंत्र बोलेंगे? स्वतंत्र जीवन मतलब माया का जीवन है। आप इंडिविजुअल अकेला रहेंगे ना तो माया खींच कर ले जाए। स्वतंत्र जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं है। इसीलिए कहां भी देखिए यज्ञ हो रहा था, जो भागवत सुन रहे थे, शौनक आदि ऋषि लिखे हैं, सब बटकर। ब्राह्मण का लाइफ यही है, कोऑपरेट लाइफ, कोऑपरेशन, इंडिविजुअल लाइफ नहीं। ये हमारा कल्चर बहुत सुंदर कल्चर है। हम नेचुरल स्वाभाविक ब्राह्मण हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया है ना, सो मिलजुल कर सेवा करना है, मिलजुल कर कीर्तन करना है, मिलजुल कर प्रसाद लेना है, ठाकुर जी के लिए सेवा करना है, ये ब्राह्मण का लाइफ है। हमारा तो है इंडिविजुअल स्पिरिट। आपका भावना अलग है, प्रभु जी का भावना अलग है, इंडिविजुअल सोल है, इंडिविजुअल स्पिरिट है। लेकिन एम, लक्ष्य क्या है? गुरु जी का सेवा करना, ठाकुर जी का सेवा करना, ये अधीन में रहना, ब्राह्मणिकल लाइफ। और एक पॉइंट में मिस कर रहा हूं, आया था, ब्राह्मण हर समय अधीन में रहता है, स्वतंत्र कभी नहीं रहता। अब देख लीजिए किसी भी ब्राह्मण का जीवन में हर समय, और ट्रेडिशनल को फॉलो करना। अब देखिए ना, पूरी में, साउथ इंडिया में जाइए, ब्राह्मण लोग देखिए, उनका जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। पुरी में जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, पूजा करने का जो शैली है, विधि है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और हम नेचुरल ब्राह्मण हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? परंपरा को, परंपरा को फॉलो करना है। हमारा खान पान, प्रीचिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, हमको परंपरा को फॉलो करना है, कुछ क्रिएट नहीं करना है। इसलिए परंपरा की शिक्षा को लेकर हमको जीना है। प्रभुपाद जी इसलिए लिखे ना, प्रभुपाद जी, द स्टडी ऑफ ब्राह्मण इज टू बिकम ए लर्नड इन द वैदिक लिटरेचर एंड टीच द वैदिक नॉलेज
to the other Brahmans. In our Krishna consciousness movement, we are simply teaching our student to become fit Brahmans and Vaishnavas. प्रभुपाद जी बोले कृष्ण चेतना संघ में हम हमारा जो भक्त लोग को हम केवल ब्राह्मण और वैष्णव बनाने के लिए, फिट योग्य बनाने के लिए, योग्य ब्राह्मण योग्य वैष्णव, इसलिए नेचुरल स्पिरिट होना चाहिए. अब पहले जमाने में देखे ना, क्या बोलते हैं, अब शार्प ब्लेसिंग्स, ब्राह्मण ब्लेसिंग भी देता है और श्राप भी देता है, कर्ष भी देता है. उनके पास पावर है, तप का बल है, उनका तप का बल है. हम लोग का तप का बल, हम लोग का तप तो नहीं करते, हम लोग सेवा का बल है. हमारा तप क्या है? सेवा, गुरु सेवा हमारा तप है. हमारा तप कोई नहीं है. कलयुग का आदमी क्या तप करेंगे? एकादशी में 10 बज जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए. एकादशी में 10 बजे प्रसाद लेते हैं हम क्या तप करेंगे? कोई ताकत नहीं है. क्या एक दिन नहीं खाने, मेडिकल जाते हैं एक दिन डॉक्टर बोलता है तुम खाना नहीं पड़ेगा, खाते हैं क्या? तो एक दिन भोजन बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. हम क्या तप करेंगे? इसलिए आचार्य लोग ने बोले ठीक है ये लोग क्या करेंगे, बेटर खान पान करो, सेवा भी करो, और खा लेने का बाद भी सेवा नहीं होता है. इतना कमजोरी आदमी कल युग में ये सब नहीं, छोड़ देना चाहिए, आलसी नहीं बनना है. ब्राह्मण लोग तप करते हैं, हम लोग का तप यही है, सुबह से शाम तक फोकस देना है हमको. ये जीवन में शहीद जैसे लोग शहीद बनते हैं ना, हम लोग को कुछ करना है. जब तक बुढ़ा नहीं हो जाए, शरीर में शक्ति है, गुरु और कृष्ण के लिए कुछ करना है. सब लोग का पास कुछ ना कुछ क्वालिटी, आपका पास भी है, सबका पास है. कृष्ण खींच कर लाए, इसीलिए तो ब्राह्मण बनना है, सही ब्राह्मण वैष्णव बनना है. ठीक है, टाइम हो गया, प्रसाद लेंगे आप लोग. क्या करें, ब्राह्मण लोग तप करते हैं, आप शाम तक तप करेंगे. ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए. हाँ. हाँ हाँ, वो स्थान काल और परिस्थिति के हिसाब से प्रवचन गुरुदेव ने बोले हैं. विदाउट लव यू कैन नॉट सरेंडर. हाँ, प्रश्न है, वो बोल रहे कि वो सुना था एक प्रवचन में, हमारा गुरुजी बोले थे कि विदाउट लव यू कैन सरेंडर, यू कैन नॉट सर्व कृष्णा. प्रभु जी का प्रश्न यही है कि हम लोग का तो अनर्थ है, हमारा तो शारीरिक चेतना स्तर पर हम लोग के हमारा प्रेम नहीं है, हम कैसे सेवा करेंगे, सरेंडर कैसे करेंगे? लुक्स लाइक कंट्राडिक्टरी. नहीं, सेवा जब तक हमारा प्रेम नहीं है तो सेवा ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल सेवा है, आनुष्ठानिक भावना से हम कर रहे हैं. कोई जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, बाथरूम जब जाते हैं तो आनुष्ठानिक बाथरूम आप जाते हैं, कपड़ा जब साफ करते हैं, पूरा मेरा कपड़ा है साफ करना है, देखे ना, शरीर नहाते हैं, ये मेरा शरीर है, अनुष्ठान नहीं करते हैं. जब सेवा करते हैं 2 घंटा है तो ठीक है, 1 घंटा में हो जाएगा तो हो जाएगा. प्रभु जी इतना हो नहीं होगा, साफ हुआ कि नहीं आप देख लीजिए. क्या है? अनुष्ठानिक भाव होता है. इसी लाइफ में हम स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा लीड करना, आगे चलना मुश्किल, जी नहीं सकेंगे हम. इसमें थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन हम लोग को प्रेम बढ़ाना है, स्वाभाविक प्रेम. ये जो श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फोकस देना है, मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है. हम सब मेरा अनर्थ है, मेरा अनर्थ है, आप ये बोल रहे हैं कि मेरा अनर्थ है. अगर आप शादी वगैरह किए होते तो पैसा कमाने के लिए सुबह सुबह आपका पत्नी बोलेंगे तुम जा पैसा कमाओ, वो नेचुरल स्पिरिट है. अब भागेंगे सुबह से शाम तक. ये थॉट्स को सब निकालना है.
अनर्थ कुछ नहीं है, हम फिर कभी कभी सोच जानबूझकर सोचते सोचते मन में ले आते हैं। ये भी एक धंधा आजकल हो गया है। ये अनर्थ, क्या अनर्थ है? अनर्थ तो रहेगा जब तक प्रेम नहीं है, प्रेम तक अनर्थ रहता है। पढ़ लीजिए ना विश्वनाथ चक्रवर्ती का, अनर्थ रहता है। तो अनर्थ अनर्थ हम बोलते रहेंगे और सेवा नहीं करेंगे। सेवा करना है, अनर्थ तो भागेंगे नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, नहीं होगा, ये अनर्थ है, प्रेम प्रेम तो मेरा नहीं है, मेरा सेवा नहीं होगा। तो हम ट्राई करते हैं क्या? हम चेष्टा करते हैं क्या? प्रचेष्टा करना चाहिए। ठाकुर जी को पता नहीं हमारा क्या अनर्थ है, हमको जितना पता नहीं उनको ज्यादा पता है। तो उनका घर में हम रह रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो अगर हमको मुक्त नहीं करेंगे अनर्थ से। मैं ये कहा करता हूं, देखिए अगर हम, मेरा अनर्थ है, मैं पुजारी सेवा कर रहा हूं, मेरा मन अच्छा नहीं है, तो मेरा क्या दोष है? पार्थ सारथी कितना दिन भूखा रहेंगे? मैं तो भोग अर्पण करूंगा, लेकिन मेरा मन शुद्ध नहीं है। वो 2-4 दिन भूखा रहेंगे, उसके बाद मेरा मन को वो साइज कर देंगे। वो साइज नहीं करेंगे तो वो भूखा रहेंगे, रहने दो उनको। मेरा भावना तो यही है। मैं पुजारी हूं, आपको सजा रहा हूं, खाना पीने को दे रहा हूं, कुकिंग कर रहा हूं, मेरा मन पागल है, मेरा मन इधर उधर भागता है। तो आप अगर सही नहीं करेंगे तो मैं वही गंदा काम करूंगा, तुम्हारा सेवा भी करूंगा। अगर तुमको अच्छा लगता है करने दो, चलो। समझते हो? सेवा नहीं छोड़ना है। और क्या अनर्थ आ रहा है? भक्ति ठाकुर यही बोले ना, भालो मंदो नाही जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसार आमी विषय प्रहरी। मैं आज सही कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा, अच्छा काम कर, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे करना है, कर रहा हूं। आपका जिम्मेदारी है। घर छोड़ दिया हूं या घर में हूं, मैं सेवक हूं, सेवा करना है। इसमें अच्छा क्या है बुरा है मुझे पता नहीं। अगर आप चाहते मुझे प्रेमिक बनाना है तो बना लीजिए। समर्पण पहले होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, मैं अर्जुन बनूंगा लेकिन कृष्ण का साथ नहीं रहूंगा। अरे अर्जुन का मतलब है कृष्ण का साथ है, और अलग रहेंगे तो अर्जुन कैसे बोलेंगे? हमको ऐसा है, भगवान का साथ में रहूंगा तो चाहे मुझे कुछ भी करे, पहले खुद का तरफ से कुछ काम है। वो क्या है? छोड़ दीजिए, पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। इच्छा भी छोड़ दीजिए, इच्छा शक्ति को भी छोड़ना है। मेरा कुछ करने का इच्छा नहीं है, गुरु का सेवा करना है, आपका पास रहना है, तो आपका जिम्मेदारी। लेकिन हमारा डिजायर इतना स्ट्रांग होता है ना, उस सेपरेट डिजायर होता है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे प्रीचर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, ये तुम्हारा इच्छा है। गुरु का क्या इच्छा है, कृष्ण का क्या इच्छा है, हमको पता नहीं। तो सरेंडर हो जाने से वो बना लेंगे। इसलिए पहले समर्पण होना है हमको, हमारा तरफ से इतना काम है। चिंता मत कीजिए, ये मेरा अनर्थ, ये रहता है। प्रेम जब तक नहीं मिलता है तब तक कभी ग्रस फॉर्म में, सूक्ष्म में और स्थूल में रहता है, छोटा बड़ा रहता है, उसको रहने दो। इसमें क्या? ठीक है। और किसी भक्त लोग का प्रश्न है? क्या सेवा है आपका? आप कौन सेवा कर रहे हैं? जो भी सेवा है, ठीक है। ठीक, नहीं सेवा करना चाहिए, आलसी कभी नहीं बन। अभी युवक है ना, रजगुण हम लोग का है। विशेष स्वरूप से ब्रह्मचार्य लोग के लिए सबसे बड़ा जीवन में इतना बड़ा फायदा ठाकुर जी दिए है ना, समय और शक्ति दोनों को ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहिए। बैठना नहीं, अभी जो करना है अभी करना है। ये इंप्रेशंस अगर माइंड में रह जाता है ना, जब बुढ़ा आप हो जाएंगे ना, ऐसे भी ताकत वाले रहेंगे। सेवा की है ना, एक भावना मानसिक स्तर पर हमको लाना है, हमें सेवक को एक स्पिरिट रहता है। नहीं अभी से अगर आप सेवा वगैरह कुछ नहीं करेंगे ना, तो आपको लगेगा युवक है लेकिन मैं बुढ़ा हूं, मेरा ये रोग है, मेरा गैस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। ये क्या है? घर में कोई बोल रहा है, कोई घर गृहस्थ में सब बोल रहा है मेरा गैस हो गया है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। जानना ही है,
घर में कोई बोलता है मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, बोलते हैं क्या? आप क्यों ऐसे बोलेंगे? आपको करना ही है। शरीर का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोग है। भक्ति सिद्धांत किशोर ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते हैं, आश्रम में रहने वाली का, जो रहते हैं आश्रम में रहने वाले, उनका दो चीज में टाइम वेस्ट होता है। अब बुरा मत मानिए, मैं ब्रह्मचारी लोग को बोल रहा हूं। आप लोग का भविष्य विश्व का भविष्य है। साधु के लिए संसार जी रहे हैं, साधु शुद्ध रहते हैं तो संसार शुद्ध रहते हैं। इसका आप लोग सब छोड़कर आए हैं ना, हमको शुद्ध रहना है, समर्पित जीवन होना है। हमको देखकर कितना लोग जिएंगे। भक्ति सिद्धांत किशोर ठाकुर प्रभुपाद कहा करते हैं, प्रायतः साधु जीवन में शारीरिक अभिनिवेश और प्रजल्प दोनों में टाइम चला जाता है। शरीर का चिंता, मेरा ऐसा दुबला पतला हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। इस शरीर कर्मफल से मिला है, जब जाना है वो तो जाएगा। तुम क्या रुकेंगे? तुम चाहे घी खाओ या कुछ भी खाओ, जाने वाले हैं, ये नहीं रहने वाले। इसका चिंता क्यों कर रहे हैं? योग, हमारा गुरुदेव कहा करते थे, योगा क्षमा बहा में हम, इसका मतलब है कृष्ण का पहला काम है आपका शरीर का जिम्मेदारी लेना। क्योंकि आप भजन कर रहे हैं ना, शरीर का जिम्मेदारी कौन लेगा? कृष्ण लेंगे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए शरीर और प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जितना टाइम में भजन करना है, सेवा करना है, हमको स्वस्थ रहना है और सुंदर चेतना में रहना है। हमको देखकर कितना पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है ना, पेड़ पौधा क्या बोले, शाखा वगैरह होता है ना, वो कितना लोग को शेल्टर देता है। देखो, अगर वो दुबला पतला है, खुद ही गिर जाता है। साधु अकेला छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, उसका पेड़ पौधा शाखा वगैरह होकर बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे कई लोग आकर आश्रय ले सकते हैं। जैसे आप लाल कपड़ा पहने, कोई भी आते पूछते बाबा जी मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे मेरा भी ये प्रॉब्लम है। तो वो सोचेंगे ये बाबा मैं उनका पास आया था आश्रय लेने के लिए, वो भी मेरा प्रॉब्लम बोल रहा है। नहीं नहीं, ये सब छोड़ना है। हमारा प्रैक्टिकली नो प्रॉब्लम। साधु का कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधु का एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो गुरु जी का बात नहीं मान रहा है, यही प्रॉब्लम। इसको गुरु जी का बात मान लेता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बहुत उत्साह से सेवा करना है, सुंदर जीवन है। आजकल बाहर में क्या हो रहा है मैं क्या बोलूं आपको, तो सब पता है। भगवान के पास रहना है, सेवा करना है, प्रीचिंग करना है पूरा दम से। बहुत सुंदर जीवन है। आप तो ब्राह्मण, सही ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जय जय राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज